Continuing with the topic, the next we study is summation raised to star. It says the set of all strings over an alphabet is denoted by summation raised to star. अब ये summation raised to star is called as clean closure because of some person who discovered it. उसके पीछे ये नाम रखा है. So this clean closure says that कि close स्टार का मतलब होता है कि अपने पास जितने भी लेंथ के स्ट्रिंग्स अवेलेबल है हमको उस सबको कंबाइन करके एक ही ब्रैकेट में लिखना है. सी इट सेज summation raised to 0 union summation raised to 1 union raised to 2 and so on. So I hope set theory किया है आपने तो आपको union का मतलब पता होगा. तो ये जितने भी अलग अलग लेंथ के स्ट्रिंग्स है क्लोजर में हम सबको एक ही साथ लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल if the alphabet has digits or say symbols 0, 1 then उसका क्लीन क्लोजर क्या रहेगा. पहले तो empty क्योंकि summation raised to 0 है so strings of length 0. then we have strings of length 1. Strings of length 1 क्या रहेगा 0 and 1. Then we'll have strings of length 2. So it will be 0 0 0 1 1 0 and 1 1. उसके बाद union summation raised to 3 मतलब strings of length 3. So it will be 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0. ऐसे जितने भी combinations होते हैं वो सब अपने को करने हैं. So that's why I said closures में there is no finiteness defined. जो हम मैंने strings में बोला था गलती से string is finite. When you write this closure it can be infinite. The strings can be infinite because closure sorry just a second because ये जो closure है ये हमेशा पूरा strings को क्या बोलते हैं एंटायर लेंथ के स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है. सो इट कैन बी इनफाइनाइट. नेक्स्ट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग. प्रीफिक्स का मतलब होता है कि अगर ये देखो ये स्ट्रिंग है ABCDE तो इसमें से जो स्टार्टिंग के सिंबल्स अलग करो ओरिजिनल स्ट्रिंग से तो वो उसका प्रीफिक्स होता है. एंडिंग के सिंबल्स अलग करो तो उसका सफिक्स होता है. जैसा देखो अभी ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है कौन सा है ABCDE. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट इंक्लूड दिस E के अलावा यू कैन राइट AB ABC ABCD. जैसे मैंने बोला था कि ये जो स्टार्टिंग के सिंबल्स है उनको अलग करोगे ओरिजिनल स्ट्रिंग से तो वो प्रीफिक्सेस हो जाएगा. एंड सिमिलरली एंडिंग के है उसको अलग करोगे जैसा B BC BCD एंड BCDE उसको सफिक्स बोलते हैं. ये टर्म्स मालूम होना चाहिए. Next comes the substring of a string. The substring of a string is obtained by removing prefix or suffix of a string. जैसा हमने कहा अभी ये prefix करो या इसका suffix करो that automatically becomes a substring. So substring का मतलब होता है original string का कोई भी एक part. BCD is a substring. ABC is a substring of ABCD. Original string में से कोई भी symbols randomly उठा के अगर हम string बनाते हैं तो that becomes the substring of your original string. Now this is very important to know that हर prefix or suffix of a string is a substring of W, which is correct. अगर मैंने इसमें से A निकाला and I only put B, C, D, E, so that becomes a suffix. But as mentioned, चाहे prefix हो या suffix हो, that prefix and suffix automatically becomes the substring of your original string. But the vice versa is not true. मतलब कोई भी substring, every substring may not be a suffix or prefix of your original string. Read the statements carefully. सारे doubts clear हो जाएंगे. Next term we study is languages. Now languages are nothing but a technique to write कि exactly कौन से kind of expressions चाहिए है. Collection of strings over an alphabet in summation is called as language. In other words, any subset of clean closure is a language. तो अभी ये देखो ये टेक्निकली लिखने का तरीका है. अभी इस लैंग्वेज को रीड कैसे करते हैं. L1 is a language over alphabet 0, 1 having equal number of zeros and 1. यानी L1 के पास एक ऐसा अल्फाबेट है जिसमें ऐसे स्ट्रिंग्स बनते हैं. Sorry, I'll get it once again. L1 के पास एक ऐसा अल्फाबेट है जिसमें सिंबल्स है 0 and 1 जिसका हमें क्लीन क्लोजर निकालना है. क्लीन क्लोजर मतलब उसमें जितने भी लेंथ के पॉसिबल स्ट्रिंग्स है वो स्ट्रिंग्स हमें बनाने हैं such that वो strings में equal number of zeros and ones होने चाहिए. Which means you can have 1 0 0 1 but you cannot have 1 1 and 0 0. जितने zeros है उतने ही ones होने चाहिए उस string में. So क्या आएगा
क्लीन क्लोजर बोला है तो एम्प्टी स्ट्रिंग से हमेशा स्टार्ट होता है, तो एप्सिलॉन आएगा। इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वन मतलब 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है। नेक्स्ट इट कैन बी 0 0 1 1। सी अगर ये वन हमने निकाल दिया तो इट विल वायोलेट द रूल। क्यों? क्योंकि इसमें 2 0 और एक ही वन होगा, बट द लैंग्वेज सेज दैट देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ जीरोस एंड वन। सो सी यू कैन राइट लाइक दिस। ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेलिंग जीरोस एंड ऐसा लीडिंग जीरोस ही आना चाहिए। कोई भी स्ट्रिंग में कैसे भी टेक्निक से लिखो, बस हर एक स्ट्रिंग में जीरो और वंस दोनों इक्वली आना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको लैंग्वेज में लिखने का तरीका ये है। और एल्स उल्टा कि अगर ये लैंग्वेज दिया है तो ये लैंग्वेज को रीड करने का तरीका ये है। जस्ट गो थ्रू इट वंस। आई होप इट इज क्लियर। इफ पॉसिबल जितना हो सके बिना देखे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। Thus, a language can be specified as W belongs to clean closure where W has a given property. मतलब ये जो string है this will always belong to a clean closure, मतलब ये strings में हमेशा n number of strings रहेगा, infinite strings रहेगा। तो कौन सा strings रहेगा? जो property या जो condition यहाँ पे mention किया है उसी हिसाब से। Examples: language of all strings where string represents a binary number। तो बाइनरी नंबर तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, बीट 1 digit 2 digit राइट एनीथिंग, तो दैट इज नॉट एन इशू। नेक्स्ट एग्जांपल: सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस एंडिंग विद 1 1। यानी एक ऐसा स्ट्रिंग बनाओ एनी लेंथ which will end with 1 1। So 1 1 starts with 1 ends with 1 1, तो ये acceptable है। 0 1 1 1 0 1 1 ट्रिपल 1 4 1 5 1 0 1 0 1, मतलब स्ट्रिंग कहीं से भी स्टार्ट करो लेकिन उस स्ट्रिंग का एंड 1 1 से होना चाहिए। तो ये उसका एग्जांपल्स है। नेक्स्ट वी सी द डिफरेंस बिटवीन phi and epsilon। Phi and epsilon are languages such that phi indicates infinite, epsilon indicates totally empty। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए, आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज लाइक अनडिफाइंड और से इंफिनिटी, लेकिन अभी फिलहाल बहुत क्लियर है, बट व्हेन वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस सम्स ना यू विल अंडरस्टैंड मोर क्लियरली कि इसका मतलब क्या है और हम कहाँ और क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट वी स्टडी द क्लीन क्लोजर। आई गेस क्लीन क्लोजर वी आर क्लियर विद कि ये जस्ट अलग फॉर्म ऑफ वे है उसको पुटअप करने का। वही लिखा है कि एल स्टार और से के स्टार समेशन स्टार। क्लीन क्लोजर इज सेट ऑफ ऑल वर्ड्स ओवर द अल्फाबेट एम। समेशन मतलब ये समेशन में जितने सिंबल्स है उस सिंबल्स में जितने भी लेंथ का स्ट्रिंग बनता है वो सारे एक साथ करके लिखने हैं। सी दिस यूनियन ऑपरेशन एंड ऑल। This is just the another way of representing it. We are already clear with the topic, so I don't want to confuse you more. Next lecture, next video, we see what is positive closure.